afternoon, students. So let's start with PBR 322 remaining part. So in last lecture we discussed about PBR 322 characteristics or the point that are important. Then we talked about resistance and sensitivity. So I hope this is clear to you. Now further how this PBR 322 will work. So this is the PBR 322 vector system with 4363 base pairs in size. This is replication origin with col E1. This is rope gene for the replication purpose. This is ampicillin resistant gene. Ampicillin resistant gene have two restriction sites that are PST1 and PVU1. Then this is tetracycline resistant gene. It has BAMH1 and SAL1. So this is about vector system. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਂਪੀਸਿਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਜੀਨ ਐਂਡ ਟੈਟਰਾਸਾਈਕਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਜੀਨ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਸ ਕਾਲਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰੋ ਕਰਾਂਗੇ ਇਕਲਾਈ ਕਾਲਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰੋ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਦੈਨ देयर ਵਿਲ ਬੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। तो मतलब ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਐਂਪੀਸਿਲਿਨ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਲਸ ਨੇ ਇਕਲਾਈ ਸੈਲਸ ਜਾਂ ਹੋਸਟ ਸੈਲ ਇਹ ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਅਗਰ ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਦੈਨ ਇਹ ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। तो ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਮਾਰਕਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। नेक्स्ट किया the presence of restriction sites within the marker tetracycline and ampicillin. The presence of restriction site within the ampicillin and tetracycline marker permits an easy selection for cell transformed with recombinant PBR 322. तो इट मीनस कहते अगर टैट्रासाइक्लिन एम्पीसिलिन दे विच रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होणगियां दैन ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਈਜ਼ੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ। ਕਿਹਦੀ ਈਜ਼ੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕੰਬੀਨੈਂਟ ਮਤਲਬ ਰਿਕੰਬੀਨੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ DNA ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਟਰ। तो हमेशा तुसी माइंड च रखना है कि अगर ये वैक्टर सिस्टम काम कर पा रहा है दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज रिस्ट्रिक्शन साइट्स विद इन दीज जीन्स एम्पीसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट insertion of DNA fragment into plasmid using restriction enzyme PST1 and PVU1 places the DNA insert within the gene ampicillin। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ DNA ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵੀ ਆਰ ਇਨਸਰਟਿੰਗ ਆਰ DNA of interest into this gene using these restriction enzyme। मतलब PST1 and PVU1 ਨੂੰ यूज करके ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ then DNA of interest ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝੀਏ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਵੈਕਟਰ ਸਿਸਟਮ ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਐਂਪੀਸਿਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜੀਨ तो AMPR ਜੀਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਸਾਈਟਸ PST1 ਐਂਡ PVU1। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਇਸ ਸਾਈਡ ਕੀ ਆ ਟੈਟਰਾਸਾਈਕਲਿਨ एम्पीसिलिन साइट के उपर इस जगह ते कट प्रोड्यूस करके कट प्रोड्यूस करने का मतलब की है कि आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प के नाल इस जगह ते कट प्रोड्यूस करांगे तो ये आ रहे एरिया ए वाले सैगमेंट नूं आपां की कर दांगे रिमूव एंड जो अपना DNA ऑफ इंटरस्ट है जो आप किसी होर सोर्स तो लिया हो सकता है ना। सोर्स मतलब कि आप किसी होर इकोलाई का प्लाज्मिड कढ़िया या इकोलाई का कोई जीन जिन्हों आप क्लोन करना चाहते हैं या कोई भी जिहदी आप क्लोनिंग सैगमेंट की करना चाहते हैं उस सैगमेंट का मैं सोर्स इत्थों लिया तो उन्होंने आप कढ़ के रख लिया। हुण इस DNA ऑफ इंटरस्ट नूं आपां कित्थे पा रहे हैं इस वाले एरिया दे विच। तो जो मैं इस वाले एरिया दे विच DNA ऑफ इंटरस्ट नूं पा रही हाँ ना हुण की होएगा दिस R विल बिकम S। क्यों S कि जिहड़ी रेजिस्टेंस सीगी वो की बन जानी सेंसिटिव। क्यों सेंसिटिविटी आ जानी क्योंकि मैं
एम्पीसिलिन दे रेजिस्टेंट जीन नू डिसरप्ट करता, तोड़ता, आ वाला एरिया मैं रिमूव करता। जो रिमूव करता तो जीन की रेजिस्टेंस शो करने की कैपेबिलिटी की होगी 0। नाउ दिस इज एम्पीसिलिन सेंसिटिव जीन। तो होया कि आ मेरे डीएनए ऑफ इंटरेस्ट ने मेरे जेडे सैगमेंट है, मेरा जेड़ा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है, मेरा जेड़ा एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है उन्होंने की बनाता एम्पीसिलिन सेंसिटिव। तो वही लाइन है, द प्रेजेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट विद इन दिस मेक इजी इंसर्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू प्लाज्मिड यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम PST1 and PVU1 place the DNA insert within the gene ampicillin, thus makes it non-functional। तो non-functional होने का मतलब क्या? Now these cells are ampicillin sensitive। Next की लिखा होया, bacterial cells containing such a recombinant PBr322 will be unable to grow in the presence of एम्पीसिलिन। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾਓ अगर मैं अपनी कॉलोनीज ਨੂੰ अगर मैं से ਇਹਨੂੰ ਈਕਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ इंसर्ट करदा दैन ਈਕਲਾਈ ਦੀਆਂ कॉलोनीज ग्रो करवावां 24 घंटे लगा के, तो जो मैं कॉलोनीज ग्रो करवाऊंगी क्योंकि मैं एम्पीसिलिन दिता होएगा तो एम्पीसिलिन किसी भी कॉलोनी नू ग्रो नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि मेरा सारा सिस्टम की बन गया एम्पीसिलिन सेंसिटिव। क्लियर हुई? तो बैक्टीरियल सेल लाइन दोबारा पढ़ते हैं, बैक्टीरियल सेल कंटेनिंग सच आ रिकम्बिनेंट PBr322। रिकम्बिनेंट मतलब मेरे डीएनए ऑफ इंटरेस्ट वाला, विल बी अनएबल टू ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ एम्पीसिलिन। तो अनएबल टू ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ एम्पीसिलिन, व्हाई? बिकॉज नाउ दिस जीन इज एम्पीसिलिन सेंसिटिव। तो एम्पीसिलिन जो मैं एंटीबायोटिक पाऊंगी तो मेरा जिहड़ा दिस ईकोलाई सैल है इन्हें मर जाना, खत्म हो जाना, क्योंकि एंटीबायोटिक का काम की आ खत्म करना। किनू खत्म करना? जिहड़े सेंसिटिव होणगे। बट नेक्स्ट किया, बट विल ग्रो ऑन टेट्रासाइक्लिन। पर कहते जे ये कॉलोनीज जां ये सिस्टम नू ईकोलाई नू मैं टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक ते ग्रो करावां दैन ये ग्रो करनगियां ग्रो। क्यों ग्रो करनगियां? क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस तो हजे हैगी आ ना। सो आपां की पॉइंट पढ़िया, आपां ये पढ़िया कि अगर मैं अपने डीएनए ऑफ इंटरेस्ट नू एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन दे विच पांदी आ दैन सेंसिटिविटी आ जाएगी। सेंसिटिविटी आने नाल हुण एम्पीसिलिन ते जदों सिलेक्शन होगी तो मेरे सारे सैल्स मर जाएंगे। एंड वाइस वर्सा कंडीशन की होएगी? वाइस वर्सा कंडीशन की होएगी? अगे की लिखा होया इन्होंने कि अगर मैं अपना डीएनए ऑफ इंटरेस्ट टेट्रासाइक्लिन च पावांगी, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन च मैं अपना डीएनए ऑफ इंटरेस्ट पाऊंगी विद द यूटिलाइजेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट्स और एंजाइम BAM H1 एंड SAL1। तो अगर मैं दोनों ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करूंगी दैन की होएगा? मेरा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट की करेगा? इत्थे ऐड हो जाएगा। ऐड होने नाल ए वाला एरिया रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने का मतलब की है कि डिलीट आउट हो गया। डिलीट आउट होने का मतलब की है कि नाउ दिस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस चेंज इनटू टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिविटी। तो हुण अगर मैं ए वालियां कॉलोनीज नू ग्रो करवाऊंगी तो ये टेट्रासाइक्लिन ते किल हो जाणगियां बट एम्पीसिलिन ते ग्रो करनगियां। सेम वे ए वालियां कॉलोनीज एम्पीसिलिन ते किल हो जाणगियां बट टेट्रासाइक्लिन ते ग्रो करनगियां। ग्रो क्यों करनगियां? क्योंकि रेजिस्टेंस है। किल क्यों होणगियां? क्योंकि सेंसिटिविटी आ। ग्रो क्यों करनगियां? टेट्रासाइक्लिन ते किल क्यों होणगियां? क्योंकि सेंसिटिविटी आ गई। ग्रो क्यों करांगे? क्योंकि एम्पीसिलिन ते रेजिस्टेंस है। तो इट मीनस एक टाइम ते डीएनए ऑफ इंटरेस्ट या तो मैं एम्पीसिलिन जीन च पाऊंगी या मैं टेट्रासाइक्लिन। जेड़ियां भी जिन्नियां भी मैं कॉपीज बनाना चाहती हूँ से मैं अपने वैक्टर सिस्टम च डीएनए ऑफ इंटरेस्ट पा के इहदियां कॉपीज बनाना चाहती हूँ, वो चाहे मैं टेट्रासाइक्लिन च पाना चाहती हूँ चाहे मैं एम्पीसिलिन, वो मैनूं पहला डिसाइड करना पएगा। अकॉर्डिंगली मेरा वैक्टर सिस्टम सारे का सारा काम करेगा। हुण ये मेरे ते डिपेंड करदा कि मैं एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस नूं खत्म करना या टेट्रासाइक्लिन, क्योंकि इन्ना तो श्योर आ कि डीएनए ऑफ इंटरेस्ट जदों मैं एंटर करना या तो एम्पीसिलिन की रेजिस्टेंस जाएगी या फिर टेट्रासाइक्लिन की। तो इस पॉइंट तक थानू समझ आया? बेसिकली सिमिलरली उन्होंने वही लाइन लिखती कि व्हेन
restriction enzyme BAM H1 or cell I is used, the DNA insert is placed within the gene tetracycline making it non-functional. Vice versa condition लिखती हो नहीं. The inactivation of gene. ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਨ ਦੀ ਇਨਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, this is known as insertional inactivation. This is known as insertional. Insertional मतलब कि within the gene मैं की करता, insert करके अपना DNA of interest उस gene ਨੂੰ inactive करता. तो this is known as insertional inactivation. Bacterial cells possessing such a recombinant PBR322 will therefore grow on ampicillin but not on tetracycline. ये ਆਪਾਂ सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं. So the feature of insertional inactivation allows an easy selection of bacterial cell having recombinant PBR322 from other type of cell. 10⁸ मतलब जिन्ना ਆਪਾਂ कल्चर लिया तो ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग किन्नियां कॉलोनीज आईयां. तो कहते इस ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ these are selective marker, selection marker, ਕਹਿੰਦੇ because of tetracycline and ampicillin resistant gene we are able to check or you can say identify my DNA of interest, my PBR322 transformed cell. So transformed cell ਤਦੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ